Welcome back again. I'm Rajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. We have been discussing various important concepts of Indian economy. We have completed chapter number 1, which was based on national income, and we are starting with poverty chapter. There would be around 4 videos, including this video, and in this video, we would be discussing about what is poverty, various types, also some other concepts, including poverty line, headcount ratio, etc. In the second lecture, we would be discussing about poverty estimation committee. There are various committees and also multi-dimensional poverty index MPI. Later on in the third video on this chapter, we would be discussing about unemployment types, ओके एंड इनइक्वलिटी. उसके लिए आपको लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ये सब कर्व्स वगैरह भी हम लोग देखने वाले हैं. ओके एंड देन द फोर्थ वीडियो on this particular chapter we will be discussing about poverty elevation in employment generation schemes. There are various schemes which has been launched by the government and those schemes are very important. Okay, to watch this all this video you will have to subscribe my YouTube channel, and also if you find this video important, do share it with your friends. You can follow me on Telegram. My ID is at the rate Brajesh Mohan. You can also follow me on Instagram. Okay. And on LinkedIn, my ID is at the rate slash Brajesh dash Mohan. Okay. And अगर आप मेरे कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो, so the link is courses.edugrade.in/learn and this is my website. So why do we need to read poverty? As we are a developing country with a huge population, so there are lots and lots of people still under poverty or still under a condition where they cannot afford a good quality of life. Okay, तो इसीलिए पॉवर्टी से रिलेटेड कई सारे डाटा आते हैं, कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं वेयर दे से दैट कि देर आर दिस मच पॉपुलेशन स्टिल अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, या अलग अलग तरह के पॉवर्टी के बारे में बोला जाता है. द मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट केम ऑन 3rd January. इट वाज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड दे सेड दैट कि द पॉवर्टी रेट has fallen below 5%, okay, 5% in 2024, and India has nearly eradicated extreme poverty. So the new term was introduced over here, extreme poverty. आप सोचोगे कि now what is extreme poverty? Okay, another report came in October by the World Bank, and they said that around 12.9 crore people extreme still living under extreme poverty in India. इन्होंने बोला, ये थोड़ा सा डिफरेंट ये रिपोर्ट है, और इसने वर्ल्ड बैंक ने बोला कि देर आर स्टिल 12.9 करोड़ पीपल स्टिल लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया. उससे पहले जनवरी में, लास्ट ईयर जनवरी में NMPI आया था, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग. दे हैव लॉन्च्ड इन एसोसिएशन विद UNDP. और इसमें जो है नीति आयोग ने हेडकाउंट रेशियो के बारे में बात की थी, एंड दे सेड दैट कि द हेडकाउंट रेशियो हैज डिक्रीज टू 11.28% इन 2022-2023. तो अब देखो यहाँ पर क्या है, नया टर्म आ गया. तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग द फैक्चुअल डाटा एज वेल एज व्हाट दीज रिपोर्ट्स से. दे आर इंपॉर्टेंट, दीज रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिलेट्स टू आवर सिलेबस. ओके, उसके अलावा हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये टर्म्स होते क्या हैं, व्हाट आर द कंसेप्ट रिलेटेड टू दीज टर्म्स. इसीलिए हम लोग इस वीडियो में वही चीज देखने वाले हैं. तो सबसे पहला चीज है, व्हाट इज पॉवर्टी. बेसिकली whenever someone asks you what is poverty, it is basically deprivation. Deprivation of what? Deprivation is lack of, okay, lack of anything. So lack of what? Lack of those things which determine the quality of life. Remember the first lecture where we had talked about quality of life in economic development. Okay, so there are two things which basically are necessary for our life. Okay, and those things are food, clothing, clean water, shelter, or access to any basic human needs. If someone is not having access to these things, one or more than one, so they are considered under poverty. So because they have lack of access to these things, that's why they are deprived of these things, and that's why they are under poverty. According to Mahatma Gandhi, poverty is the worst form of violence. If someone under poverty, they are under the violence. उन्होंने हिंसा का रूप इसको बता रखा है पॉवर्टी को. वर्ल्ड बैंक ने इसी चीज को और भी थोड़े से ज्यादा बड़े पैमाने पर एक्सप्लेन किया हुआ है. दे सेड दैट इट इज नॉट ओनली हंगर और शेल्टर, इट इज ऑल्सो बीइंग सिक एंड नॉट एबल टू सी द डॉक्टर. ओके, दे ऑल्सो सेड दैट इट इज नॉट हैविंग एक्सेस टू स्कूल.
So they included health factor, they included education, they included job, employment factor. Okay, means they have put the living one day at a time. जो daily wagers होते हैं, those who are daily wagers means they earn on a daily basis, they have put them also under poverty conditions. कि दो जिनके पास ये fear, they are fear for the future, कि अगर मान लो कल फिर से रोजगार नहीं मिला तो they would be having difficulty in affording these things, or losing a child to illness due to unclean water. So all such conditions basically put the persons or belonging a family under the poverty. Okay, so now what are the causes of poverty? If I have to explain the causes of poverty, there are various reasons. There are literally lots of reasons, especially in case of India. Okay, so but we will be understanding under 4 dimensions, and those are, there are historical reason, there are economic reason, there are social reason, and there are political reasons. Okay, I won't be reading all those. बस आप इसको जो है वीडियो को यहाँ पॉज करके आप पढ़ सकते हो. ऑल दीज हैज बीन एक्सप्लेनेटरी इन नेचर. आप इसको समझ में आ जाएगा क्या रीजन है. जैसे कि मैं बात करूँ हिस्टोरिकल रीजंस, एज वी हैव अ कॉलोनियल पास्ट. ओके, ब्रिटिशर्स रूल, उससे पहले भी काफी सारे रूल किया है. इस कारण से क्या हुआ है कि वी हैव दैट बैगेज. ओके, तो एक तरह से जनरेशनल पॉवर्टी जो है बड़े पैमाने पर भारत में अवेलेबल है. ओके, so the destruction of rural and urban handicrafts and small scale industries, drain of wealth by the colonial government, ये सारे के सारे रीजंस हैं, कहीं हिस्टोरिकल रीजंस हैं भारत में पॉवर्टी के लिए. ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीम पॉवर्टी. इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सट्रीम पॉवर्टी. इन इंडियन केस मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ओनली. एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करता है. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द फैमिलीज इनकम below the poverty line to meet expenses including food, clothing, clean water etc. ओके, कि जो भी मैंने बोला था कि बेसिक जो नीड होते हैं ह्यूमन के, जो बेसिक नीड्स हैं, उसको अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, इफ अ फैमिलीज इनकम इज नॉट दैट मच कि वो उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाए, उन चीज़ों को अटेंड कर पाए, तो उसको हम लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर पुट कर देते हैं. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग कुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग 2 methods. One is per capita intake of calories. If one is per capita intake of calories, कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो how much calories required on a daily basis. So for rural area it is 2400 calories per day, and for urban area it is 2100 calories per day. सेकेंड मेथड है मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, उसी को यूज किया जाता है. तो भारत में जो है जो पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी बनती है वो इन मेथड का इस्तेमाल करके ये बताती है कि व्हाट इज़ द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, या कितना मिनिमम इनकम है जिससे नीचे के लोग को हम लोग बीपीएल बोलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलने वाले हैं. जिससे नीचे के लोग को हम लोग बीपीएल बोलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे. ओके, इसी चीज़ को वर्ल्ड बैंक भी इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन करता है. ओके, इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन करता है. दे स्टार्टेड डिफाइनिंग इट 1990. भारत काफ़ी टाइम से इश्यू करते हैं, लेकिन इन 1990 द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड अ डॉलर ए डे पॉवर्टी लाइन. दे स्टार्टेड डॉलर ए डे पॉवर्टी लाइन. ओके, दे सेड दैट कि दोज फैमिली अर्निंग लेस देन $1 अ डे, लेस देन $1 ए डे, उसको पॉवर्टी के नीचे हम लोग डालेंगे. वी विल पुट देम अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी. पॉवर्टी नहीं, वी विल पुट देम अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी. ओके, इट वाज ट्रू फॉर ऑल द पुअर कंट्रीज, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री. दे हैव सेट दिस स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री. तो ध्यान रखना, आगे और भी स्टैंडर्ड्स में बताऊंगा, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा. लेटर ऑन इन अक्टूबर 2015 दे इंक्रीज दिस, दे रीसेट दिस $1 to $1.90 a day. They increased to $1.90 a day. Lots of books are still mentioning $1.90 a day, but from September 2022 this has been changed to $2.15 a day. याद रखना, those who are earning less than this amount, they would be put under extreme poverty. Not under poverty, under extreme poverty. Means they cannot afford a bare minimum income which is required for a quality of life, or which is required to afford food, clothing, clean water, shelter, education, healthcare etc. Okay, उसके पास उतना इनकम नहीं है, इसको उन्होंने ये पुट किया हुआ है. यही चीज आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाता है.
उसी को हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी, तो रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या है? इट इज बेसिकली नॉट द टाइप ऑफ पॉवर्टी, बट यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। Okay, here the people are able to afford these things. Here the people are able to afford these things means they are earning $2.15 a day or more than that. But the problem is that they are earning less than other people. अगर मैं 10 लोग हैं, if the population is 10%, so if the 7 persons are earning around $200 per day, बट द रिमेनिंग 3 आर अर्निंग ओनली $50 a day, तो यहाँ पर क्या होगा? देर इज अ गैप, देर इज अ वाइडर गैप। ओके, इनकम लेवल गैप अवेलेबल है। ओके, सो दीज थ्री वुड बी कंसिडर्ड पुअर, दीज थ्री वुड बी कंसिडर्ड पुअर। तो ये ध्यान रखना कि दिस रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली अ कंपेरेटिव टर्म, इट इज डिफाइंड एज द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी इन विच पीपल लिव। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के बारे में बात करता है, एंड इट इज फॉर यू जनरली फॉर रिचर कंट्रीज दैट हैव लार्जली एलिमिनेटेड द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर जो है इनकम के बारे में बात हो रही है, इनकम गैप के बारे में बात हो रही है। मीन्स कि यू आर इन सिचुएशन वेयर यू आर एबल टू अफोर्ड ऑल द बेसिक ह्यूमन नीड्स, बट योर इनकम इज लेस देन योर नेबर्स। या 10 लोगों में से 7 लोगों को ज़्यादा इनकम है, 3 लोगों को कम है, तो दोज थ्री वुड बी कंसिडर्ड पुअर इन नेचर। ओके, तो याद रखना ये इनइक्वलिटी इन इनकम के बारे में बताता है। दिस बेसिकली टर्म्स व्यूड इन टर्म्स ऑफ इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। एक यहाँ पर एक चीज में, जैसे मैंने यहाँ वर्ल्ड बैंक के आपके बारे में बताया आपको, यहाँ पर एक और कंसेप्ट ध्यान रखना, एंड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज, मैंने बोला कि 2.15, इफ समवन इज अर्निंग लेस देन 2.15, तो वो तो क्या हो गया? एक्सट्रीम पॉवर्टी का कंसेप्ट हो गया। बट देर आर वेरियस टाइप ऑफ कंट्री, लोअर इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जितने भी देश हैं 193 195 कंट्रीज हैं, उसको अलग अलग कैटेगरीज में पुट करता है। ओके, सो दैट देयर डेवलपमेंट और दे कैन फाइनेंस देयर डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली। तो वर्ल्ड बैंक का एक कंसेप्ट है मिडिल इनकम कंट्रीज का, एक कैटेगरी है मिडिल इनकम कंट्रीज का। तो फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज दे सेट द पॉवर्टी एट $6.85। ओके, कि इससे नीचे जो भी अर्न कर रहा है, दे वुड बी कंसिडर्ड एज पुअर, नॉट एक्सट्रीम पॉवर्टी, दे वुड बी कंसिडर्ड एज पुअर। ओके, तो अब मिडिल इनकम कंट्रीज का क्या कंडीशन है कि हु विल बी कंसिडर्ड अंडर मिडिल इनकम कंट्रीज? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार दोज कंट्रीज वेयर GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इज बिटवीन $1,136 to $13,845, they would be considered under middle income countries. अब middle income countries को they have further divided into two parts: lower middle income countries where India lies, and there are upper middle income countries where some other country lies. Okay, and we are lying in middle income, lower middle income country because of population, because we have huge amount of population। और चूंकि ये ग्रॉस कंसिडर हो रहा है, नेशनल इनकम कंसिडर हो रहा है, तो टोटल और पर कैपिटा हो रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड होगा, और इसी कारण से हम लोगों का जो है ये कम है। तो ऐसा नहीं कि भारत में जो सभी लोग जो है इस इनकम ग्रुप में, काफ़ी सारे लोग इससे बाहर भी हैं, बट स्टिल ओवरऑल अगर बात किया जाए तो वी आर अ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। ओके, एंड द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का इनकम रेंज ये है, और इसके बाद से लेकर यहाँ तक आपको अपर मिडिल इनकम कहलाएगा। ओके, तो याद रखना, जैसे कि मैंने रिपोर्ट जो दिखाया था आपको, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने बोला 12.9 करोड़ के बारे में, ओके, उसी रिपोर्ट में एक और लाइन है, however with a higher poverty standard of $6.85। तो अब में से कुछ लोग ये रिपोर्ट पढ़ते हैं, दे से दैट ये क्या हो गया, सर ने तो 2.15 बोला था, ये 6.85 कहाँ से आ गया? तो दिस इज बेसिकली फॉर पॉवर्टी स्टैंडर्ड फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक। ओके, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो दिस इज द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो अगर वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि अगर ये वाला पॉवर्टी थ्रेशोल्ड को कंसिडर किया जाए फॉर इंडिया विच इज ऑल्सो मिडिल इनकम कंट्रीज, तो वैसे केस में द पीपल दैट आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, द पीपल दैट आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2024 इज हायर देन दे वर लिविंग इन 1990। 1990 में देर वर अराउंड 431 मिलियन पीपल, मीन्स 43.1 करोड़ पीपल वेयर लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन। तो ये बोल रहे हैं कि 2024 अगर ये वाला स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाए तो 2024 में 2019 के से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी में रह रहे हैं, एंड दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ।
ओके, तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना। इसके बाद और भी पॉवर्टी के टाइप्स हैं, जैसे कि ह्यूमन पॉवर्टी है, अनदर कंसेप्ट इज ह्यूमन पॉवर्टी। तो ह्यूमन पॉवर्टी की जब बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो नॉट अबाउट जो लोग एब्सोल्यूट से ऊपर आ चुके हैं। दिस इज फॉर दोज हु हैव कम आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड दे नीड सम अदर थिंग्स लाइक political opportunities, means the representation and political representation, social opportunities and economic opportunity, means those who do not have access to these things, they would be considered under poverty, and those who have access to these things, they would be considered out of human poverty. Okay, so it's like availability of job and fair wages, access to education and healthcare services, access to participation in government and decision making. इसको जो है, this basically increases the standard of living if someone have these things. Then comes the situational poverty. Situational poverty is kind of temporary poverty. Okay, situational poverty is a kind of temporary poverty. It can happen with the job loss. Yeah, there are some kind of illness associated with the family. Yeah, there are some natural disaster. Let's suppose there is earthquake, flood or any situation that occur. और उस कारण से क्या होता है कि लोगों की जॉब या घर वगैरह बर्बाद हो जाती है. तो due to that, this kind of transitory poverty, it is also kind of transitory poverty. नॉट ट्रांजिटरी, सिचुएशनल है, यहाँ पर मतलब कुछ समय के लिए टेम्पररी पॉवर्टी है, कुछ समय के लिए जो है ये आपको लोग गरीबी में जाते हैं. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी ऑफन शॉर्ट टर्म, इंडिविजुअल्स और फैमिली में एक्सपीरियंस इट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक फेज ऑफ लाइफ, किसी भी फेज में आपको ये आ सकता है. देन कम्स द जनरेशनल पॉवर्टी. जनरेशनल पॉवर्टी बेसिकली कि लगातार लोग पिछले जनरेशन से लेकर अब तक ये आने वाले जनरेशन में वो लोग गरीब ही हैं, मतलब कोई गरीब पैदा हुआ है और अभी भी गरीब है और आगे भी उसके गरीब रहने के चांसेस हैं, तो उसको हम लोग जनरेशन बोलते हैं. कि मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है वो पॉवर्टी ट्रांसफर होना, कि मीन्स दे डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज और मीन्स टू कम आउट ऑफ दिस पॉवर्टी ट्रैप. Okay, they do not have access to any tools which is required to get out of this trap. This is basically called as generational poverty, or it is handed over to individual from families from one generation to another generation. इसके अलावा भी रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी और भी टाइप्स हैं, चर्निंग पॉवर्टी, सब टाइप्स हैं. वो सब वन लाइनर है, आपको जो है ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं. एक उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज पॉवर्टी लाइन का. पॉवर्टी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है. भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी बनती है और दैट डिटरमाइंस द पॉवर्टी लाइन. ओके, ये मान लो एक पॉवर्टी लाइन है, ये पॉवर्टी लाइन है. इसके नीचे जो भी लोग होंगे वो सारे के सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे, और इसके ऊपर जो भी लोग होंगे दे वुड बी कंसिडर्ड आउट ऑफ पॉवर्टी. ओके, so poverty level is basically an income. It is the minimum income, you can say it is the minimum income that is required by a person or a family to meet the basic needs that they have. Okay, और ये different countries के लिए different होता है. No two countries have similar, और हो भी सकता है, there are no such rules, तो ये different होता है. अगर मैं बात करूं कि भारत में क्या होता है, कि भारत में जो है ये मिनिमम पर कैपिटल एक्सपेंडिचर MPCE या कैलोरी इंटेक मेथड के माध्यम से डिसाइड किया जाता है. जो पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी, चाहे वो लखवाला कमेटी हो, तेंदुलकर कमेटी हो, रंगराजन कमेटी हो, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उन सब ने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके दे यूज, समटाइम्स दे यूज कैलोरी मेथड, समटाइम्स दे यूज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड, और उसी पर उन्होंने जो है पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया है. मीन्स अ लाइन हैज बीन डिसाइडेड कि बिलो विच someone earning below that particular income would be considered under below poverty, और जो लोग इसके बाहर अर्न कर रहे हैं उसको जो है इन लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी बोला जाएगा, बट ये जो लोग हैं इन लोगों को बिलो पॉवर्टी में बोला जाएगा. ओके, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे जो है वो आपको कैलोरी इंटेक के अनुसार है, और रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए 2100 है. याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इज द मेथड दैट इज यूज्ड. इट इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. ओके, ये यूज होता है. अभी जो करंट में हो रहा है तो वो तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट को यूज किया जा रहा है. अभी करंट में क्या हो रहा है, तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट था. ओके, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसी को यूज किया जा रहा है. पॉवर्टी एस्टिमेशन लास्ट कमेटी वही था, ऑल्दो इसके बाद रंगराजन कमेटी जो है, रंगराजन कमेटी बना था, बट दिस पर्टिकुलर कमेटी गेव इट्स रिपोर्ट इन 2014-15 और उसको फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट ने. देयर वर सम
कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड विद दिस थिंग, क्योंकि जितना इनकम थ्रेशोल्ड उन्होंने सजेस्ट किया था उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। साथ ही साथ इन्होंने जो है जब ये रिपोर्ट लेकर आए तो दे सेड दैट कि पॉवर्टी हैज इंक्रीज्ड। अगर आपको मैं दिखाऊं इस चीज़ को, तो जब तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उसमें जो तेंदुलकर कमेटी ने बोला था कि देर आर अराउंड 21.9% पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। बट जब रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट ने बोला कि देर आर अराउंड 29.5% पीपल। तो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसके बाद जो है इसको सरकार ने मानने से मना कर दिया। और गवर्नमेंट सेड दैट कि वी वुड बेसिकली एडजस्ट द तेंदुलकर कमिटीज रिकमेंडेशन विद इन्फ्लेशन, और उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, सो इन 2011-12 poverty was basically estimated at 816 rupees per capita per month for rural area and 1000 per capita per month for urban areas। और अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एट द करंट लेवल पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज 1059.42 रुपीज इंडियन रुपीज फॉर रूरल एरिया and 1286 Indian rupees per month in urban area। ओके, और जो मैंने बोला था कि रंगराजन कमेटी, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि रंगराजन कमेटी में दे हैड सजेस्टेड 972 रुपीज फॉर रूरल एरिया एंड 1407 रुपीज फॉर अर्बन एरिया। ओके, अब देखो ये चीज होता क्या है, मतलब किसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन विच यूज्ड टू ऑपरेट टिल 2017, ऑल्दो 2015 में ही नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। नीति आयोग वाज फॉर्म एंड नीति आयोग वाज फॉर्म बाय एबोलिशिंग द प्लानिंग कमीशन, बट द लास्ट प्लान विच वाज 12th 5-year प्लान, 12th 5-year प्लान, इट लास्टेड टिल 31st मार्च 2017। इसके बाद नीति आयोग ने अपना फंक्शन स्टार्ट किया। तो नीति आयोग जो है बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी। सो दे हैड ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ कमिटी अंडर अरविंद पंगड़िया, 2017 में वो उन्होंने बनाया था। बट वो एक तरह से टास्क फोर्स था, इट वाज नॉट ए कमिटी बेसिकली। ओके, वो टास्क फोर्स था, एस्टिमेशन टास्क फोर्स था। ओके, और अगर मैं रिसेंट बात करूं तो लास्ट ईयर उन्होंने जो है NMPI लॉन्च किया विथ UNDP। उन्होंने UNDP के साथ मिलकर जो है NMPI लॉन्च किया, और वही रिपोर्ट मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था जहां हेड काउंट रेशियो के बारे में बात की थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिपोर्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए नोडल एजेंसी कौन है, वो नीति आयोग है। और डाटा किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो NSSO के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान देने की बात है कि अगर पॉवर्टी लाइन की बात करूं तो जो भारत में हम लोग बात करते हैं मोस्टली एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, बट एब्सोल्यूट के बाद भी जो है वो वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलेनियर, इस तरह से आपका कैटेगरी होता है। एंड दिस इज द लाइन। तो अभी जो भारत एलिमिनेट कर रहा है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एलिमिनेट कर रहा है। ओके, उसके बाद लोग पुअर हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि दे हैव बिकम रिच। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। basically we have eradicated some amount of absolute poverty or extreme poverty। in the last we would be discussing about head count ratio। this is very important। अब देखो ये 2021 में जो पेपर हुआ था RBI का मेंस, उसमें उन्होंने हेड काउंट रेशियो के बारे में पूछा हुआ था डिस्क्रिप्टिव में। ओके, सो व्हाट इज हेड काउंट रेशियो, बेसिकली इट इज द टोटल नंबर ऑफ BPL पीपल, total number of BPL persons divided by total population, total population multiply by 100। यही चीज आपको जो है हेड काउंट रेशियो देता है। एंड इट इज मीन्स कि दिस मच परसेंटेज ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी। तो फॉर एग्जांपल इफ ए पॉपुलेशन इज 130 करोड़ एंड 13 करोड़ पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वैसे केस में हेड काउंट रेशियो हो जाएगा 10%। ओके, सो वी कैन से दिस 10% पीपल पॉवर्टी लाइन पीपल लिविंग इन द कंट्री। तो यही चीज आपको यहाँ पर डिटरमाइन, हेड काउंट रेशियो इसको डिटरमाइन करता है। ओके, तो अलग अलग कमेटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और हेड काउंट रेशियो यही था। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको हेड काउंट रेशियो बताया था कि एज पर NMPI, जो मैंने बोला कि नीति आयोग ने अपना रिपोर्ट लॉन्च किया है 2024 में, उसके अकॉर्डिंग इन 2005-06 द हेड काउंट रेशियो वाज 55.36। Now it has decreased to 11.28 in 2022-2023। जो प्रोजेक्टेड डाटा है वो क्या है, 11.28 तक डिक्रीज हो चुका है। एंड दे सेड दैट अराउंड 24.8 करोड़ इंडियंस हैव एस्केप्ड
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मल्टी डायमेंशनल उन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया है, हम लोग पढ़ेंगे। और दे सेड दैट कि अराउंड 24.82 करोड़ पीपल हैव एस्केप्ड दिस थिंग, ओके। और हेड काउंट रेशियो हो गया। और दे हैव सजेस्टेड दैट देयर आर फ्यू स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दे हैव रिकॉर्डेड लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ एमपीआई पुअर, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी पता है, रिलेटिव पॉवर्टी पता है, ह्यूमन पॉवर्टी पता है, जनरेशनल सिचुएशन पता है, हेड काउंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको अब पता है, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।